Okay, so I'm back here. Great. So, hello everyone. Again, a very warm welcome to all of you. This is Nitin from Catterfly. This is Pattachitra Art Open House, where we are going to discuss the history, the context, the themes, and of course, we would be privileged to have Mr. Bhaskar Mohapatra, that all of you know very well, is a national award-winning artist. He would be joining us maybe after 25-30 minutes, and he would, of course, be taking questions from you as well as explaining us various nuances of the art, as well as he has kindly agreed to give us a tour of his house. So before we get started, let me show you a part of the video that we actually did along with Bhaskarji. And let's get started here. Okay, here you go. कला के इतिहास और उसमें प्रयुक्त विषय के बारे में बात करें। Okay, so I'm of course not going to take you the entire story of Ramayana. That's yet still going to unfold. But before we dive into details, let me ask, how many of you have actually joined in workshop with Bhaskarji? And did you get a chance to look at this elaborate story of Ramayana in his house, where he might have explained the entire story? Pattachitra is not only about one painting; you can even tell story. So anyone who have I know that many of you have joined the workshop, but any of you have seen this painting before? Anyone who might have had this opportunity before? And if you don't speak up, I might even have a quiz for you. So uh, anyone who wants to volunteer? Okay, looks like everyone is a bit shy early in the evening. So let me actually show you another thing. So Rachna is saying she has not seen the Ramayana Pattachitra, and we will actually maybe hopefully get a chance to see this with Bhaskarji when he joins in. Okay, if I may ask you some questions, anyone who wants to volunteer? Okay. If I were to ask you, some of you, who are the traditional temple Pattachitra painters? Mahapatras, Maharanas, both of them, or none of the above? Any guesses here? Mahapatras, No. just guessing. Okay. Of course, Bhaskarji is Mahapatra, so I think that's the most obvious answer. Anyone else? Mahapatras. Okay. Let's see what we got. Let's go with Mahapatra here. And unless until we, of course, answer each of these questions, we might not know the answer. Uh, did any of you ever get a chance to go towards Puri? Have you visited Puri? Vinita ji is nodding her head, so she obviously has been. Yeah, I have been to Puri too. Great. So Hemaji also has been. And did you get a chance to visit this Heritage Craft Village? And which one is this? Okay. And any takers here? Any guesses? Okay. If there are no volunteers, then let me put in my answer. Let's see if it is Raghurajpur. Okay.
I'm obviously not going to go through all the questions because I mean that's something work that's to be done after the open house. We'll send this to you later on. Did you ever come across this word, Hingula, Haritala, Ramaraja, while you were doing the workshop with Bhaskarji? I haven't done Pattachitra. Vinita ji has not done Pattachitra, so we can maybe excuse her for this one, but let's see from others who have done this workshop with Bhaskarji. Did you come across these terms, Hingula, Haritala, and Ramaraja? Okay, looks like we are getting a bit more complex here. So what I'm going to do is instead of asking these questions, let's see that if we can actually maybe try to understand some of these things in the context of Pattachitra art, and then hopefully we would be able to answer some of these questions, all of us together. Yeah. So with that, what I'm going to do is that we have some kind of slides or the posters that I'm going to walk through to talk about some of these concepts. We do have some videos where we are going to kind of alternate between the posters and the videos just to kind of bring more life to the conversations. And without making you wait a lot, let's just get started here. Okay. You can see my screen, I hope. Great. Yes. So I often like to say that it is actually not about the art form. In fact, it is art of storytelling. And we obviously saw one of the painting where you are illustrating the entire story. In fact, even the Krishna Leela is also one of the major themes where you do not only one patta, but in one big canvas, you tell the story. And with this, these kind of workshops, we try to obviously get to the roots of the art and helping artists like Mr. Bhaskar Mahapatra to also share their story. I think some of the things which are very, very obvious, if you kind of look at it, Pattachitra, right? I mean, Patta obviously means the cloth. Yeah, it's a Sanskrit word, and it's a picture on the cloth canvas. And as we're discussing, the traditional artists are called actually Chitrakars, and they belong to Maharana and the Mahapatra both. Yeah? It's not just Mahapatra, it's Maharana and the Mahapatra. In there, of course, this is an art which actually goes in the family across generations and almost considered as a sketchbook. It's kind of a family sketchbook being passed on from generation to generation. And those who are familiar with this, there is the Pattachitra from Odisha, and there is actually a Bengal Pattachitra also. Yeah. So of course there are different kind of variants of this, but at a very broad level, there is a Bengal Pattachitra, there is a Oriya Pattachitra. This is one of the themes that we did in one of the recent workshops, and that actually is a very important theme because one of the origin of the art form goes to this. It's very obvious. What's this theme is all about? Rath Yatra. Yes. In fact, I have actually taken this picture from the work which has been done by one of our participants. She wrote a very beautiful story around what was her experience in while doing this workshop. And this is actually the painting done by her. So this is the kind of a rich work that is being done, and many of you are doing it. Do you know, any of you want to share the name of this lady who has done this? If you can't, then you will probably need to go to our Instagram handle and we'll have to find out because we have actually featured her work there. So that's another to do for you. And if you find it out, you can of course put it in the chat box and let us know. But this is one of the very, very unique themes that we had picked up while the art itself comes from, or its history really comes from there. And let's see. Odisha. I'm sorry, Vinita ji? This one is from Odisha, from Bhubaneswar, from Puri, Jagannath. Yes. That's where the, yeah. Absolutely. So if you really look at it,
as I was saying, there were different kind of Pattachitra. So there is no one single kind. There are different variants of it. You would have probably come across this term called Bitti Chitra. Yeah? The Bitti Chitra is actually the painting which is done on the wall. And later in the session, we will see how Bhaskarji and his family has actually done this entire paintings on their wall of their house. Yeah, we'll actually go through all of that. In fact, yesterday we did share a sample video which he had shared. The one which is obviously done on the cloth is called the Pattachitra, and the one which is done on the palm leaf engravings, it's called the Tala Pattachitra or the Pothi Chitra. Yeah. Many of you would have probably heard this doha, right? The Pothi Parpar Jagmuha Pandit Bhayana Kore. That actually the Pothi is coming from this, because in the ancient times, all the scriptures, etc., were written on the palm leaf. Yeah. So that's where the relevance of this. And if maybe kind of step back in history, right? Clearly, see, there's a lot which is has been done in the Pattachitra for a long period of time. But if we were to look at some of the major milestones or the periods of time, people say that you could actually, starting from the 5th century, you could see this in the old murals of Odisha, yeah, in the Konark and Puri, in Bhubaneswar. And of course, in the 12th century, clearly the construction of the temple of Lord Jagannath at Puri, I mean, that actually gave it a significant inflection point. 16th century is when the Bhakti movement in the Indian culture actually started, and the uses of all the, I would say, the adoption of Radha and Krishna is the major theme, yeah, and the usage of natural colors started, yeah. Having said that, I think during the subsequent years, because of the British Raj as well as the Mughal influence, the art of Pattachitra actually was not progressing a lot, and it's only during the 1950s a lot of art activists and collectors. Interestingly, actually, many of these were non-Indians or foreigners. Yeah, they gave a major boost to it. People like Halina Zili, she's from Poland. Yeah, the collectors like the RM and the CS Bequest, right? They actually have a huge collection of this, which they even donated to the museums. And in the recent times, the government is also helping and recognizing many of these artists. Bhaskar Mohapatra is one of them. If I may ask one question to you, all of you, do you know that one of the painting of Bhaskarji has been given to the president of a country? Which country? And our prime minister gave it to him a few years ago. Anyone? US. US. Poland. Okay. So I think we probably need to do a much better job in sharing this information on our respective groups. It's actually the French president, you know, and when he visited India, I think in 2016 or 17, I think, Bhaskarji's painting was gifted by Prime Minister Modi to French president. And in the recent times, of course, there's many of these artists as well as organizations like Catterfly are helping artists to adopt the online channel. But one of the significant work which was done by an IFS officer, Deepika Bajpayee, to actually kind of create a Twitter handle, which actually helped the artist significantly during the COVID time also. Yeah. Now, before we get into the popular themes, let me show you something which is from the place it actually comes from. Yeah. And we were talking about the Raghurajpur village. Let's have a very quick look at what this is all about. মানচিত্রে হয়তো আলাদা করে রঘুরাজপুরের পরিচয় নাও পাওয়া যেতে পারে। পশ্চিম ভারতের প্রাণকেন্দ্র
কলকাতা শহর থেকে প্রায় 10 ঘন্টার রেলপথের দূরত্বে অবস্থিত বিখ্যাত জগন্নাথ ধাম পুরী। রঘুরাজপুর গ্রামটি এই পুরী শহর থেকে প্রায় 11 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ভার্গবী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত রঘুরাজপুর জনকাদেরপুর নামে একটি বড় গ্রামের অংশ। পুরো গ্রামটাই শিল্পীদের। শিশুকাল থেকেই পারিবারিক শিল্পচর্চার পরিবেশে এখানকার পরবর্তী প্রজন্ম যুগ যুগ ধরে বড় হয়ে আসছে এবং তাদের মধ্য দিয়ে শিল্পের প্রবাহমানতা সজীব হয়ে আছে। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় 5 অব্দে জন্ম নেওয়া গতিপুয়া সম্প্রদায়ের এই গ্রামটি পটচিত্রের এক বৃহত্তম নিদর্শন হিসেবে বর্তমানে বিদ্যমান। So it's a very long video, of course, but this basically is the one which introduces the concept of the artist village in the Raghurajpur. It's actually one of the first village which has been UNESCO Heritage Village awarded as the artist village. If you ever get a chance, in fact, we are indeed planning to organize this trip once the COVID stabilizes. And many of you have shown interest in learning not only through the online workshop, but also being able to visit these places and learn from artists like Bhaskarji at the place from where the art comes from. So, of course, stay tuned for that. We will hopefully soon award these travel plans as well as the art workshops, hopefully probably sometime around November. Let's see. There's more to come on that. Just going ahead, let's simply look at some of the major themes, right? I mean, clearly, the Lord Jagannath and who is considered to be incarnation of the Lord Krishna, right? That is obviously one of the major themes, yeah. And as I was saying, right, like Ramayana, the entire story of Lord Krishna, the different episodes from his life, from the childhood as an adult, and obviously the different aspects of the Ras Leela, all these can be depicted in a one big canvas, right? And here, of course, is the three deities. Anyone knows the actual name of them? I'm sure all of us. Come on. That's Jagannath. Lord Jagannath is the one in black, and the other two are, I think, siblings. Yes. Balram and Subhadra. Yeah, Balram and Subhadra. So they're called Balbhadra and Subhadra. Yeah. And we actually have obviously done this painting also very recently in one of the workshops. Now, any of you know that the tradition of Pattachitra, and one of the major thing is also starts with that when the actual darshan of the statues could not happen, and they were draped in the cloth and then painted. So actually, this is how it started, that basically the patta was covered on the statues and they actually painted the statues. I'm not sure if many of us are familiar with this, and I would request each one of you to maybe do a bit of a reading on this. We will of course share this, but when you go to the temple, you would actually see the real ones. Yeah. So clearly, significant themes or the predominant themes come from the life of Lord Krishna, and obviously who is avatar of the Lord Jagannath, considered the incarnation of Krishna, and Balbhadra and Subhadra. So obviously there are various forms of it. Now, of course, as I was saying, that we just saw very quickly the theme of Ramayana. There's one very long video of it. We have it there. If you want to actually see this painting, I'll quickly walk you through this on our Catterfly website also. This is also featured there. I think not very long ago, we also did one painting of Lord Ganesha, right, Manish? Yeah.
So clearly, we do pick up many of these themes, and many more interesting are coming up. And in the recent times, I mean, of course, last 10 years or so, it's also being done on the different surfaces, right? On the metal, I mean, of course, the palm leaf and the canvas, etc. is there. One of the very important part of this entire thing is that how the natural materials are actually used to make the Pattachitra. Yeah, starting with the stones, the brushes, the palm leaf, and the natural colors. And this is where the Hingula, Haritala, and the Ram Raja, the question that I was asking about, is coming from. Yeah? It actually is the name of the different colors. Anyone knows what is Hingula now in this context? Any guesses? Because you actually have four of these colors right in front of you. Colors derived from stone. I don't know. Orange one. Mixed with gum in a. So Hingula, someone said it's a orange. Haritala? Hari is green, but well, or blue after Hari, Lord Hari. Let us ask our expert, Manish. What is Haritala? That is a yellow one. Haritala is the yellow one. It's actually not pink. Ram Raja. Blue. Okay. Okay. Now with that, let's actually quickly look at how some of these things are actually made. Yeah. So there's one very nice video I actually figured, and let's hear this traditional artist talking about this. Yeah. पट्टचित्र पेंटिंग के ये पट्टा का प्रोसेसिंग कैसे होता है ना, ये दो पुराने सूती का साड़ी और ये इमली का बीज है, उसको बड़ा सील पत्थर में ग्राइंडिंग करके पकाने का बाद ये वाला बीज को पकाने का बाद ये गम होता है, इसी गम से दो साड़ी को चिपका के ये हैंडमेड कैनवास बना होता है। और ये दो साइड में ये जो खड़ी पत्थर है ना, उसको पाउडर करके उसका साथ ये गम मिक्स करके पॉलिश करते हैं। ठीक, ये पत्थर से उसको घिस के इसी टाइप का हैंडमेड जो कैनवास बनाते हैं, उसको रियल पट्टा बोलते हैं। ओके। और उसका ऊपर जो पेंटिंग को बोलते हैं पट्टाचित्र। पट्टाचित्र ये पट्टा और उसका ऊपर पेंटिंग को पट्टाचित्र। ओके। ये सब जो नेचुरल स्टोन कलर है कैसे बना होता है। This is done like hand painting. Oh yeah, all with the traditional pigments and. Let's go get you a couple of Look, he's showing how it's done. Look, what are you doing there? I'm already warming up. I can feel it. जो प्राइमरी 5 कलर है, ये समुद्र का शांख है, उसको ग्राइंडिंग करने के बाद ये क्रीम आता है, ये चीज को ग्राइंडिंग करने के बाद ये व्हाइट कलर आता है। और ये हेंगुल पत्थर है, ये पत्थर का नाम हेंगुल है, इसको ग्राइंडिंग करने के बाद ये रेड कलर आता है। और ये हरितल पत्थर है, इससे ये येलो कलर आता है। और ये गेरू मिट्टी मैरून कलर आता है। और ये जो काजल है, जो घर पे जो दिया जला के काजल से ये ब्लैक कलर। ओके। और ये कथा बेल है, ये बेल जो गर्ज का थोड़ा चोट करेगा तो ये गम निकले। Okay, so again a long one, but there goes your Hingula, Haritala, and Ram Raj. Yeah, I mean we just kind of very clearly saw how the patta is made. It's actually from the old saris, and you use the gum. Gum is made from imli. Imli, I'm sure most of us have kind of really eaten in different ways. The seed of that, actually that's you can make gum out of it, and the two pieces of the old saris are stuck using that, and then you rub using these stones and make what you call as a patta. That's a patta canvas. Yeah. Of course, in the olden times, the brushes were made of
some of the animals like the rats and all. Some of the traditional artists still use it. Palm leaf and the engraving technique. In fact, we have done a workshop on the engraved palm leaf. I think many of you have participated in that. I do remember Seema ji definitely did it. And many of you have actually even asked us to if we can get the natural colors from Bhaskar ji. So here, and we have helped many of you to get these natural colors. So if any of you are interested, please let us know. We would be more than happy to get that for you. Going ahead very quickly, I'll recap the process of making the Pattachitra art, and I'm sure Bhaskar ji would be joining in some time. So clearly, it starts with the sketching, right, and the overall outlining part of it. And many times we even provide this as a pre-sketch. And some of you, when you're interested in doing that, we help you do this using the grid method. Then, of course, you use the primary colors in the specific sequence. And then we start the outlining process in black. Yeah. And then you start getting into developing the jewelry and the clothes, the facial detailing, and one of the very part of this is the borders. Of course, the border, you typically tend to use a lot of these floral designs. Yeah. So this is how, in very simple way, the making of the painting is. And here, I think we are talking about the BT Chitra, right? We were talking about the murals in the Pattachitra art, and this is obviously from nowhere, but Ram, I think he has just joined it. And before we just get started, let me just very quickly show you a very nice video that Bhaskar ji and Bandana was actually very kind in sharing that with us. And let me see if I'm able to pull it out. If not, then we'll anyways. Able to see the screen? Yes. Okay, so with this, I'll stop sharing because I have Bhaskar ji with me here. And नमस्ते भास्कर जी, कैसे हैं आप? जी नमस्ते। ये देखिए आपके घर का हमने वीडियो दिखा दिया, अभी देखा आपने? जी जी मैं देख रहा। कैसा लगा? हाँ बहुत अच्छा। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया है आपका घर का वीडियो। भास्कर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बहुत दिन हो गया, आपका मुंह नहीं देखे हैं हम। देखिए तो भास्कर जी, अभी देखिए हमने सबको बोला कि भास्कर जी से बात करते हैं। वर्कशॉप के समय उतना बात करने का मौका नहीं मिल पाता है। जी तो जी इसीलिए सोचा कि एक स्पेशल सेशन करते हैं जिससे कि आपसे बातचीत हो सके, लोग आपसे जो कुछ पूछना है वो पूछ सकें, आपको जो बताना है वो बता सकें, क्योंकि आप इतना कुछ सिखाते हैं लेकिन सेशन के समय इतना सारा बात नहीं हो पाता है। इसीलिए हमने सोचा कि अभी आपके आने से पहले हम थोड़े से एक्सपर्ट बन गए थे और थोड़ा बहुत बता रहे थे पट्टचित्रा के आर्ट के बारे में लेकिन असली नॉलेज तो आपके पास है। और कहाँ से शुरू करें? आपके पास कुछ आइडियाज हैं कहाँ से शुरू करें भास्कर जी से बातचीत करना? आप ज्यादा बात करते हैं। भास्कर जी अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे और उसके बाद फिर भास्कर जी डिटेल में अपनी पेंटिंग्स के बारे में, कलर्स के बारे में, और जो है भास्कर जी के पास में बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। तो मेरा नाम भास्कर महापात्र, मेरा घर जगन्नाथ पुरी का पास है, रघुराजपुर। और
मेरा स्पेशल है, हमारा परंपरा है, ये पट्टचित्र आर्टिस्ट हूँ। और हमारा घर में बाबा बाबा का बाबा ऐसे 5 पीढ़ी से ये पेंटिंग कर रहे हूँ। और ये जो पट्टचित्र है ये प्योर ओरिजिनल कलर है, जैसे नेचुरल कलर है। नेचुरल कलर पूरा स्टोन की कलर है। तो घर में हम तैयार करके, और जो ये सारी कलर में तो वुड एप्पल की जो गम है तो सारी कलर में वो गम लगता है। और जो कैनवास जो है, ये कैनवास हम खुद तैयार करते हैं घर में। तो 3 कॉटन क्लॉथ और जो इमली जो बीच उसको ग्राइंडिंग करके उबाल के वो गम तैयार कर देते हैं। तो 3 कॉटन कपड़ा तो गम लगा के तो एक कर देते हैं। तो उसके बाद हम चौक पाउडर 2 साइड, ये 2 साइड हम चौक पाउडर लगा के तो पॉलिश करते हैं। पत्थर है, 2 पत्थर भी है। भास्कर जी, एक प्लेन शीट है आपके पास में क्या? एक प्लेन शीट है क्या आपके पास में? जी, ये ऐसे ही है। तो ये तो पेंटिंग मैंने किया है। हाँ भास्कर जी, ये तो फिनिश पेंटिंग है। आपके पास एक वो कोई प्लेन पट्टा जो है वो दिखा सकते हैं कि कैसा दिखाई देता है जब शुरू दोनों करते तरफ से खाली वाला। हाँ, ये देखिए। हाँ हाँ। हैं? अच्छा, और ये आप खुद बनाते हैं घर पे? जी जी। कितना समय लगता है बनाने में भास्कर जी इसको? ये जो कैनवास तैयार करते हैं कम से कम 5 फुट बाई 3 फुट 1 दिन लग जाता है। अच्छा, तो 1 दिन में पूरा वो सूख जाता है? मतलब आप इमली का जो बीज है उसको ग्राइंड करके वो गम बनाते हैं, उसमें फिर ये लगाने के बाद पूरा स्टोन से रब करके पूरा प्रोसेस 1 दिन में खत्म हो जाता है? हाँ, कोई कोई दिन में 1 दिन में हो जाता है, नहीं तो 2 दिन लग जाता है। तो अच्छा, सब कुछ वेदर पे भी डिपेंड करता है। तो 1 दिन में हो जाता है। वेदर पे भी डिपेंड करता है, गम को सूखने में टाइम लगता है। तो अगर वेदर अच्छा होगा, ब्राइट सनी डे है, तो जल्दी सेम डे हो जाता है। अच्छा, और इसमें चॉक पाउडर भी यूज करते हैं क्या? जी जी। अच्छा, रबिंग के समय की रब करने के बाद? हाँ, ये जो गम है तो गम लगा के वो सूख जाएगा। हाँ हाँ। तो सूख जाने के बाद फिर चॉक पाउडर और जो इमली जो गम है तो उसको मिक्स करके तो 2 साइड हम 2 कोटिंग देते हैं। अच्छा, तो सूख जाने के बाद मेरे पास कलर ये जो पॉलिश करने के लिए जो पत्थर है तो 2 साइड पॉलिश भी होता है। अच्छा। पॉलिश करने के बाद पेंटिंग होता है। सरफेस को जो है ग्राइंड करके उसको जो है सरफेस को प्लेन कर देते हैं। उनका ग्राइंडिंग स्टोन है उनका, वो करने के लिए। तो आप सिर्फ खुद बनाते हैं कि ममता और वंदना भी हेल्प करती हैं आपकी? हाँ, वो तो बड़ा हेल्प करता है घर में। अच्छा, ऐसे तो हेल्प नहीं करेंगे तो वो तो हो नहीं सकेगा। वो कैनवास तो घर में तैयार कर देते हैं एक साथ मिलके, 2 दिन 5 दिन ऐसे पेंटिंग बंद करके हम तैयार कर देते। कम से कम 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए हम तैयार कर देते हैं। अच्छा। तो ये सारी कलर में ये गम है डालते हैं।
एप्पल वुड गम है जो बाइंडिंग के लिए, जो कलर, जो नेचुरल कलर है उसको बाइंड करने के लिए जो गम मिलाते हैं वो ये दिखा रहे हैं भास्कर जी। इसको, भास्कर जी इसको कैसे मिलाते हैं आप, इसको क्या करते हैं? तो सॉलिड है। इसको हम पूरा छोटा छोटा टुकड़ा करके हम एक बाटली में वो पानी दे देते हैं, तो भीग जाते हैं रात को, फिर सुबह तो एक दूसरा जगह पे उसको कपड़ा से वो उसको छान देते हैं। ओके। ये पानी में मिल जाता है, इसको रात में अगर डाल दें तो पानी में मिल जाता है। अच्छा जी, तो उसको इसमें कुछ वुड का टुकड़ा टुकड़ा भी इसमें है, तो क्लियर हो जाता है, तो उसको कपड़ा से छान के तो हर कलर में वो गम मिलाना पड़ता है। और कलर थोड़ा देखिए। हाँ, थोड़ा दिखाइए वो। In the meanwhile, any of you have any questions, please feel free to put in the chat box, or of course ask him. So this is of course a session for you. ये है वाइट कलर है। यस, बेला गम। अच्छा, ये समुद्र की जो शंख है, तो उसको हम घर में ला के तो उसको टुकड़ा टुकड़ा करके हम एक दिन पानी में भिजा के रखेंगे। उसका बाद उसको पेस्ट कर, जैसे मसला पेस्ट है ना, तो उसको ग्राइंडिंग करके बहुत टाइम लगता है, तो उसको सुखा के फिर हम तैयार करके हम रखा है। अच्छा, तो ये आपको खुद मार्केट से लाना पड़ता है कि आप समुद्र से लेके आते हैं? नहीं, हम पूरी चला जाते हैं, तो जो मछली पकड़ते हैं उनको हम बोल देते हैं, नहीं तो कुछ एडवांस भी दे देते हैं, तो उन्होंने रख के हमको बोल देते हैं, कोई किसी को भेज देते हैं। अच्छा, नहीं तो फोन कर देते हैं, हम जाके ले आते हैं। और बाकी कलर का स्टोन्स कहाँ से मिलता है फिर आपको, जो हिंगोला, हरितला और ये हेंगुल है, ये लाल कलर है। अच्छा, तो हमारा बाजार में मिल जाता है पुरी में, नहीं तो पुरी में नहीं मिलता है तो भुवनेश्वर, नहीं तो कटक। अच्छा, तो इसको हम घर में तैयार करते हैं। ये उसका नाम हेंगुल है। ये जो हेंगुल है उसको हम तैयार करके रखा ये है। हाँ, ये गोली। तो कैसा करते हैं इसको, कितना टाइम लगता है इसको करने में? ये जो हेंगुल है, ये जो पत्थर है, कम से कम 100 ग्राम पत्थर, तो कम से कम 7-8 दिन लग जाता है। डेली 2 घंटा 3 घंटा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घुमाना पड़ता है। अच्छा, तो देखेंगे हम, ऐसे ही देखेंगे हम पूरा चिकना हो गया है, तो उसको छोटा छोटा गोली करके सुखा के एक हम डब्बा में रखते हैं। अच्छा, अरे वाह। और एक ये गोली से फिर कितना कलर बनता है और कितना पेंटिंग बन जाएगा आपका? ये एक गोली कम से कम 1000 की पेंटिंग हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब
इसको बनाने में काफी समय लगता है और काफी मेहनत का प्रोसेस है। वो स्टोन तो खैर रॉ मटेरियल है, जी जी लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो हम लोगों को वही बता रहे थे कि अगर किसी को नेचुरल कलर्स चाहिए भास्कर जी से तो हमें बता सकते हैं, and we will share all the details with everyone who wants to get the natural colors from Bhaskar ji, and you can order with Catterfly and Bhaskar ji will ship it to you. Now Bhaskar ji, अभी हम चाह रहे थे कि अगर आपने अपने घर में जो पेंटिंग किया आप सब ने मिला के, वो थोड़ा अगर दिखाएं और समझाएं। और जितना भी काम किया है, खासकर आपके आने के पहले लोग बोल रहे थे कि रामायण का जो पूरा बड़ा पेंटिंग है या फिर कृष्ण लीला वाला जो बड़ा पेंटिंग है, वो भी अगर आप दिखा के समझाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है। तो वंदना आप हैं क्या वहां पे? वंदना है जी सर, नमस्ते। कैसे हैं वंदना आप? ठीक हो? बढ़िया। तो सब लोग चाह रहे थे कि आप लोगों ने अपने घर को इतना सुंदर सजाया है, अगर आप वो दिखाएं और थोड़ा समझाएं कि उसका पूरा मतलब क्या है और कितना टाइम लगा, कैसे लगा, और उसके बाद पेंटिंग भी दिखाएं तो वो बड़ा अच्छा लगेगा। पॉसिबल है क्या बनना? जी। अच्छा, ये कौन सा है, रामायण की कृष्ण लीला का है? ये कृष्ण लीला। अच्छा, हाँ। ये बनना है, इसमें बहुत कुछ मेरे को हेल्प किया है। अच्छा, कितना साइज है इसका भास्कर जी? इसका साइज 25 बाई 40, 25 बाई 40। 25 by 40 मतलब 2 by 3.5 feet। और कितना समय लगा होगा आपको बनाने में? 1 महीना, 2 महीना? हाँ, ये 25 डेज लगा। हाँ, थोड़ा पास से इसका सीन दिखा सकते हैं और समझा सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मैंने शुरू किया। अच्छा। ये विष्णु की अनंत शयन है। ओके। और यहाँ पे देवकी वसुदेव मैरिज है। अच्छा। मैरिज के बाद वो देवकी वसुदेव को लेके कंस रथ में बैठा के घर में ले रहा है। और ये आसमान में श्री कृष्ण का दर्शन भी देवकी वसुदेव कर रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ पे देवकी वसुदेव जेल में है। अच्छा। ये जेल के अंदर विष्णु की स्वप्न देखे है। और ये जगह पे ये श्री कृष्ण जन्म है। अच्छा। तो यहाँ पे कृष्णा को वसुदेव लेके जा रहे, उसी टाइम पे उग्रसेन सामने आ गए। हाँ। और यहाँ पे जमुना, श्री कृष्णा को लेके जमुना पार कर रहे। अच्छा, मतलब एक एक माइन्यूट डिटेल्स आपने कैप्चर किया है, छोटे छोटे डिटेल्स। आप जो सिंपली उसको बता रहे हैं एक शब्द में और एक सेंटेंस में, उसके पीछे पूरी कहानी है एक एक सीन में, नहीं? जी जी, ये पूरा कहानी है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने स्टोरी किया मैंने।
तो इसमें भास्कर जी, आप जैसे बोला 25-30 दिन लगता है, तो क्या पूरा दिन लग जाता है? कितने घंटे काम करते हैं आप एक दिन? ये कम से कम 4-5 घंटा, ज्यादा अच्छा। ये कम से कम तो 5 घंटा 6 घंटा तो ऐसे बैठना पड़ता है। और आप ये जो ऑब्वियसली ये कृष्ण भगवान की जो जिंदगी के जो क्षण हैं, तो ये तो आपने मतलब कोई रेफरेंस यूज करते हैं पेंटिंग बनाते समय, कि आप अपने मन से बनाते हैं? मन से, ऐसा कुछ पेंटिंग देख के नहीं बनाते, मन से। अच्छा, बहुत ही सुंदर है। लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं भास्कर जी। चैट बॉक्स में यहाँ पर लिख रहे हैं मैसेज आपके लिए। सीमा जी बोल रही हैं कि इतना सारा डिटेल कैप्चर किया है। नितिन देश पांडे बोल रहे हैं कि ये तो विश्वास नहीं हो रहा है कितना अच्छा है। तो तो ये थैंक यू सो मच। और कुछ दिखाना चाहेंगे वंदना, भास्कर जी, घर में आपका जो पेंटिंग है? And for everyone, all these paintings, or many of these paintings are on our website. We will share the link with you also, and we will quickly go through that as well. ये क्या कहानी है जी भास्कर जी? ये विष्णु के 10 अवतार है। अच्छा। ये मत्स्य, कस्य, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि, और बीच में अनंत शयन, विष्णु शयन, 10 अवतार है यार। हमें याद है कि आपने 10 अवतार का एक गंजीफा कार्ड का भी सेशन करवाया था, नहीं? जी जी जी। तो उसमें ये सब 10 अवतार आपने बनवाए थे? जी। बहुत सुंदर। इसका क्या साइज है भास्कर जी? इसका साइज है 15x20। और इसमें ये चमक वाला लुक कैसे आता है? ये जो सामने जो उसमें जो ग्लेजिंग जो दिख रहा है ना, वो कैसे करते हैं और कैसे आता है वो लुक? ग्लेज आता है, ये पानी का कलर ग्लेज आता है ना। हाँ हाँ। इसमें थोड़ा गम ज्यादा डाला मैंने। अच्छा अच्छा। और पेंटिंग बनाने के बाद भी कुछ करते हैं क्या? कुछ गरम करके उसको वो करते हैं क्या? नहीं नहीं, ये ओडिसी पेंटिंग में ऐसा कुछ मेलामेंट जो आप बोलते हैं ना। हाँ हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके ओके। ये तो जगन्नाथ भगवान का है, बताइए आप इसके बारे में। जगन्नाथ, बड़ा भाई बलराम, बलभद्र और बहन सुभद्रा। अच्छा। ये 2 भाई और 1 बहन है। इसमें आपने इतने तरीके के बनाए हैं, कुछ सिर्फ गोल्डन और ब्लैक में ही बनाए हैं। आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? फेवरेट तो सब अच्छा है। रामायण सब अच्छा है। रामायण अच्छा है, कृष्णा लीला भी अच्छा है, जगन्नाथ भी अच्छा है। हाँ हाँ। गणेश भी अच्छा है, दुर्गा माँ की भी अच्छा है। और ये पता है कि नितिन जी, इनको बोलिए कि नारी कुंजर दिखाएं। दैट इज रियली अमेजिंग। भास्कर जी, थोड़ी सी डिमांड है कि नारी कुंजर दिखा सकते हैं क्या? जी जी जी। सीमा ने अभी किया है ना भास्कर जी के साथ। ना कमाल का सेशन था ना। आई मीन आई एम रियली फ्लोर्ड।
Just look at it. Just look. अभी complete भी नहीं है. कंप्लीट नहीं हुआ है. कोई नहीं, आप दिखा दीजिए, ऐसे ही दिखाइए, बहुत सुंदर है. हाँ, वो कंप्लीट ना हो तो भी उतना ही सुंदर लगता है भास्कर जी. आप दिखाइए इसे. वाओ, लुक एट दिस. भास्कर जी थोड़ा सा ऊपर करिए. थोड़ा सा ऊपर करिए भास्कर जी इसको जरा. हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत. Looking forward to see yours also, Seema, and everyone else. I'm working on it. I'm working on it. Take your time, take your time, take your time, take your time. और भास्कर जी बालाजी भी दिखा रहे हैं क्या भास्कर जी? जी बालाजी भी किया था ना हम आपसे. हाँ जी, बालाजी भी किया था. स्मिता, that's स्मिता ना? हाँ स्मिता. हाँ, रथ यात्रा आपका कितना सुंदर. That is another one ना. थैंक यू. हाँ, अच्छा बनाया था आपने. आंसर दे दिया. मैंने लोगों से सवाल पूछा था वो किसका था. ओहो, sorry. I spoiled Nitin's question. हाँ, ये नारी कुंजर आपका ब्लैक और गोल्डन में. हाँ, this is the reference image. This was the reference image. बहुत सुंदर. Lovely. Look at, wow. भास्कर जी, आपके हाथ में जादू है. सच में. आपकी कोई भी पेंटिंग ऐसी नहीं हुई है जो अच्छी नहीं बनी हो आज तक. सिखाते भी इतना अच्छा है ना, मतलब सीखने में मजा आ जाता है इनके साथ. उनका सबसे अच्छी बात है कि उनको बोलते हैं कि थोड़ा सिंपल बताइए, फिर वो बनाते हैं, बोलते हैं अब इससे सिंपल क्या करूं. Oh my I find it very cute. बेचारे he tries to make it simpler. Yes. Yeah. Look at मेरा this. incomplete है. बालाजी हमने ट्राई किया था, and how beautiful this he has created. बहुत सुंदर है ये. And he has never visited the temple. I have asked him. Yes, this was a very new concept for him. We pushed him, but he did such a beautiful work. It's very beautiful. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं टेंपल में ही हूँ, इतना अच्छा फील है. भास्कर जी बोल रहे थे. हाँ, ये फर्स्ट टाइम मैंने किया है. मैंने बहुत बार मैंने सोचा था बालाजी की पेंटिंग करके रखूंगा मैं, तो मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, इसलिए आपने मेरे को चांस दिया है. आपने हम लोग को मौका दिया, हम क्या चांस देंगे आपको. हमने आपको जो रेफरेंस इमेज दिया था भास्कर जी, उससे आपने कम से कम 50 गुना ज्यादा सुंदर बनाया है. Exactly. अब आप ना इनको जरा मंदिर भी दिखा के लाइए फिर ना. सब साथ में जाएंगे ना. हम सब साथ चलेंगे ना इकट्ठे. Of course. वाह, चल, lovely. वंदना और भास्कर जी, आप लोग ये जो और भी नए मटेरियल में काम करते हैं, ये मास्क हो गया, बॉटल में हो गया, और केतली में भी आपने एक बार सिखाया था, वो दिखाना चाहेंगे क्या? जी, जो पीछे जो मास्क हैं और जो आपने बॉटल में बनाया है, सौरा पेंटिंग भी करते हैं, मुझे मालूम है, पहले ममता करती थी काफी. हाँ, ममता कर रहा था, वो तो शादी हो गया है उसका. अभी वंदना भी कुछ करता है. अच्छा, वंदना क्या करती है? वंदना आप भी सौरा करती हैं? वंदना भी हाँ, कभी कभी सौरा पेंटिंग बैठ जाता है करने के लिए. तो हमें तो सिखाया भी था एक बार, वंदना ने सिखाया था कि सौरा की क्लास ली थी. वो ममता जी थी. ओके. तो ममता got married. अच्छा. She was the eldest one. तो भास्कर जी आप वो भी दिखाइए ना, पाम लीफ वाले जो थे आपके, वो भी बहुत कमाल के थे. मैं जो ऑनलाइन पाम लीफ सिखाया है, कभी कोई नहीं कर पाया उसको. अरे सिखा नहीं पाया, बाकी लोग ने तो किया ऑफ कोर्स. ये
इसमें बहुत डिटेल भी है। आप आजकल ये रेगुलरली करते हैं या बहुत कम करते हैं भास्कर जी? मैं 5 मैंने डॉक्टर भी मना किया, ज्यादा आंख आंख को प्रेशर देना नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बहुत महीन काम होता है ना ये। इसका सेशन भी बहुत अच्छा रहा था, इसमें जो सेशन आप लोगों ने किया था। हाँ जी। उन्होंने जो सेशन किया था सीमा जी, उसमें भी भास्कर जी ने शायद 5-6 साल के बाद में नीडल हाथ में लिया था। हाँ 5-6 साल। नाइस। बहुत बढ़िया। तो बन्ना, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप फोन उठा के अगर घर में दिखाएं, आपका जो घर के जो आपने वीडियो बना के भेजा था, वो दिखा सकते हैं और समझा सकते हैं? क्या साइज है इसका बन्ना? 30 इंच है। और इसमें और ब्लैक के अलावा भी कुछ कलर्स यूज होते हैं ना? हाँ, कुछ नेचुरल कलर भी यूज होता है, और स्केच पेन जो कलर है वो भी यूज होता है। हमने जब किया था आपने स्केच पेन करवाया था ना? हाँ जी जी। फैसिनेटिंग पार्ट काजल है, नॉट ब्लैक कलर, काजल से बनता है। काजल से बनता है। काजल है। वाह, ये पूरा एक इस साइज का पट्टा, ये इसमें पाम लीफ बनाने में कितना टाइम लगता होगा भास्कर जी आपको? ये 12 दिन 14 दिन, कम से कम 15 दिन तक लगेगा। ये तो और ज्यादा महीन काम जी। ये क्योंकि ये पूरा टोटल पेड़ की डिजाइन है। तो कुछ रामायण करेंगे, कृष्णा नीला करेंगे, वो कम से कम 1 महीना लग जाएगा। एक सवाल है अनामिका जी से कि काजल यूज करते हैं तो फैलता नहीं है क्या? हमें पता है उसका आंसर, लेकिन हम चाहते हैं कि आपने हम लोग को सिखाया था वो और लोगों को बताएं फिर से कि काजल फैलता नहीं है लगाते? नहीं, काजल तो फैलता नहीं। काजल तो हम घर में तो तैयार करते हैं। तो काजल तैयार करने के लिए कम से कम 45 मिनट एक तैयार करने के लिए लगता है। तो हम 10 मिनट में तैयार करके पानी डाल के काम करेंगे, वो काजल मजा नहीं आएगा। हाँ, तो अनामिका जी, ये एक्चुअली जब ये बनाते हैं पाम लीफ में ना, तो एक्चुअली एक वो क्या बोलते हैं, छोटा सा हैमर और एक वो रहता है, सुई रहती है, उससे यू एक्चुअली एनग्रेव एंड देन यू पुट द दिस ब्लैक काजल एंड देन basically it gets stuck inside that engrave, and then you actually rub it off from the top, the rest of it. Does he has to seal it or something? No, it need not be sealed. It actually has to be cleaned after. See, it's basically it's like chheni hathoda jo hota hai na. It's like a very small form of it. You actually engrave, and you of course you have the knives also, and then you put the black kajal, and then you rub off everything from the upper surface. So whatever you see is actually inside the surface. Okay, this is very intricate and detailed work, I think. Oh, it's a very, very intricate work. That's why you were saying it takes 15 days minimum to write, to do that kind of a thing. It's Do you conduct workshop? Do you conduct workshop for this or no? We actually did. We actually have done that, and that's what we are discussing. That Seema ji actually participated. I know many others do, but Seema ji definitely did, and we did ship this toolkit also. Okay.
That would be wonderful in the future. Really was a wonderful experience, and मैंने तो सिर्फ ड्राइंग इसलिए किया था because I was so intrigued by just the thought कि काजल से कैसे engrave करके पेंटिंग बन सकती है, लेकिन बहुत ही कमाल का मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। अच्छा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत ही यूनिक, सुन के ही बहुत यूनिक लग रहा है। बहुत खूब। तो बनना, बाहर अंधेरा हो चुका है क्या? अब हम लोग अगर बाहर आपके घर की पेंटिंग देखना चाहें, वो पॉसिबल है क्या? हाँ, लाइट है। लाइट है? पर ज्यादा तो लाइट। ठीक है, देखिए कितना कोशिश करते हैं। तब तक हम आप भास्कर जी का जो आपने पेंटिंग शेयर किया था ना, वो हम दिखाते हैं। एक मिनट रुकिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि भास्कर जी की अगर पेंटिंग किसी को खरीदनी है तो एक्चुअली भास्कर जी ने काफी सारा काम हम लोग के साथ शेयर किया है ना, और ये हम लोग काफी कोशिश करते हैं कि ये इनकी पेंटिंग अगर बिकने में मदद हो सके। तो कैटरफ्लाई की वेबसाइट में ये काफी सारी पेंटिंग फीचर है। ये भास्कर जी की पेंटिंग है, इसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं ना? जैसे कि रामायण की लाइफ स्टोरी की हम बात कर रहे थे, तो मैं आपको एक बनना, आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं भास्कर जी की पेंटिंग थोड़ा दिखा रहा हूँ, है ना? ये देखिए, तो आप लोग ये लिंक पे जाके देख सकते हैं। ये देखिए, ये रामायण की स्टोरी है। ये सीन 1, ये देखिए, ये सीन 2 हो गया, ये सीन 3 हो गया। तो ऐसे आप पूरा काम डिटेल में यहाँ देख सकते हैं। और किसी को अगर ये चाहिए है पेंटिंग, आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं या खुद घर के लिए रखना चाहते हैं, तो आप बताइए। we will be very happy to get it for you, and we are obviously trying to see that if Bhaskar ji can get benefited as a part of this. A lot. This is of course a very elaborate one. There are many more paintings in the smaller and the bigger sizes that you should have a look. The Krishna life story is there, of course, as well, and Krishna Radha painting, I think a very similar form of it. We did it during our workshop also. So like all the details that you can see here, and all the gory details. Yeah. So this is what I wanted to just quickly show. Now let's go back to Banna. हाँ, Banna, हम आ गए आपके। जी जी। पेंटिंग के बारे में बताइए। बहुत सुंदर है, हम तो वीडियो में देख के बहुत खुश हो गए। आप बताइए इसके बारे में। ये शादी का टाइम में हुआ था ये। अच्छा, ये क्या ममता की शादी के समय बनाया था आपने? हाँ, इसे अच्छा। वाल में ऐसे बनता है। हाँ हाँ। तो ये पूरा किस किसने मिलके बनाया था बनना? पापा और अंकल और भी पापा का फ्रेंड है, मिलके बनाए थे। आपने कौन सा बनाया था? बनना ये हर शादी में बनता है या जैसे अब नेक्स्ट शादी में यही रहेगा या चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा। हाँ, तो जो अपने उधर नॉर्थ साइड में एक कोहबर जो होता है, ये उस टाइप का ही है। ये हमारा कंपलसरी है। शादी होगा तो ये पेंटिंग्स हम वॉल में। अच्छा, आप हाथ में टॉर्च लिए हुए हैं, मुझे दिख रहा है। जी, पापा है। ये नेचुरल कलर्स है कि एक्रिलिक कलर्स अभी वॉल पे जो यूज हुआ है? ये नेचुरल कलर है। नेचुरल? जी, नेचुरल है ये। ब्यूटीफुल। ये डिजाइन है, अंकल ने बनाया है ये डिजाइन। अच्छा, बहुत सुंदर। तो उस समय अब समझ में आता है कि वर्कशॉप क्यों नहीं हो पाया ना, आप लोग इसमें बिजी थे। उस समय आप सब लोग बहुत बिजी थे ना, तो इसमें भी बहुत समय गया होगा। आप पहले से कर देते थे
पहले से कर दिया था। शादी का टाइम आ जाएगा तो आ गया, तो इसीलिए पापा दूसरे काम में बिजी रह गए और अंकल को बुला लिए। ये बताइए, दिखाइए पेंटिंग बनना इसका, बताइए, समझाइए थोड़ा। ये ये भी दशावतार हैं? जी। अच्छा, और इसकी क्या कहानी है, ये जो नीचे वाली है? ये जो ये कृष्णा बलराम कांचीदेश जा रहे युद्ध करने के लिए। अच्छा, जब युद्ध करने के लिए जा रहे हो तो रास्ता में तो प्यास लगे। जब प्यास लगे तो ये जो मिल की लेडी है वो गांव से ले ये जो दही लेके जा रहा है बेचने के लिए। हाँ, अच्छा। तो उनसे तो दही पी के तो ये मिल की लेडी हम मांग रहे, तो दही तो आप पी ले तो मेरे को पैसा दे दीजिए। और कृष्णा तो बोले वो तो मेरा पास तो पैसा नहीं है, तो मेरा पास एक अंगूठा निकाल के दे रहे। भास्कर जी, आगे हम घर ले लेंगे ना, तब आप आके सजा दीजिएगा मेरे घर को। मिल जाएगा। पहले ही बुक कर लेते हैं आपको, आप बहुत बिजी पर्सन हैं, पहले ही बुक कर लेते हैं आपको। बहुत बढ़िया बात होगी वो तो। ये सौरा जी, हमने सौरा का भी एक काफी बड़ा वर्कशॉप किया था, जहां तक मुझे याद है ना? सौरा का किया था, it was a very nice pattern, tribal dance. और यहाँ पर है मास्क। इसका मास्क का बेस क्या रहता है बनना जी, ये किस पेपर माशे का रहता है बेस, किससे बनता है ये? पेपर में बना हुआ है ये। अच्छा, यस, ये मैच है, वॉल हैंगिंग, सब एनिमल्स है। और वो कोकोनट में, और आपको जो फेवरेट सुपारी में जो आप बनाते हैं वो कहाँ है? जी, यहाँ पर है। अच्छा, ये सुपारी के ऊपर है? सुपारी के ऊपर। और एक बहुत आपने अच्छा है। आपने एक ईयररिंग भी बनाया था ना, एक ईयररिंग मुझे याद है, आप पहले दिखाया था आपने पहले। नहीं, और एक है पेंटिंग, मैं दिखाऊंगी आपको अभी। अच्छा, ये भी तो मेरा पेंटिंग है, हाँ, नारियल का। नारियल का, अच्छा, बहुत सुंदर। ये इसमें भी वही कलर यूज होते हैं? नहीं, ये फैब्रिक कलर यूज होता है। अच्छा, ये सारा मास्क पेपर से बना है? जी, ये भी पेपर में है। अच्छा, क्या मिक्स करते हैं आप पेपर के साथ? कुछ भी नहीं मिक्स करते हैं, बस गम। ओके ओके, गम होता है, इमली का जो गम है। अच्छा अच्छा, गम और पेपर और जो चॉक पाउडर, काम खत्म होने के बाद चॉक पाउडर लगाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। ये जगन्नाथ की मूर्ति है। ये मूर्ति Speaking किससे, of मिट्टी से colors, बनी है? speaking of colors, I have a question. Can I ask now? Yes, sure, please. So the natural colors that is being talked about, do they look good on when you do it on paper, or does it have to be that imli paste base? और ये एक मिनट में पूछता हूँ।
मंदिर के अंदर है वाह, जगन्नाथ। ये बहुत लकड़ी बहुत ही का है। लकड़ी का। तो Yes. बन्ना, एक ये सवाल था कि जो नेचुरल कलर्स हैं ये नेचुरल पट्टा पे तो यूज होते हैं, ये पेपर पे भी यूज हो सकते हैं? पट्टा में यूज होता है। पट्टा में ही यूज होता है उसको। हाँ। अगर हैंडमेड पेपर वगैरह में अगर यूज किया जाए या कैनवास में तो अच्छा नहीं होगा? कैनवास में होगा। कैनवास में होगा, अच्छा, ओके। So I hope that answers the question, that you can use it in the canvas, but I mean, maybe not on the regular paper. Yeah? Okay, no, but by canvas, are they referring to the kind of canvas that they prepare with the imli paste, or a No, I think regular store-bought canvas? the store-bought canvas, I mean, as far as I know, it can be used as well, because we know that not just in this, but even in, say, like in the Kerala mural art, you can actually use that in the regular canvas also. Yeah? Oh, okay. Okay, thanks. ये बॉटल्स के बारे में बताएंगे, कैसे बेस क्रिएट करते हैं इसका? उसके ऊपर कपड़ा हम पेस्ट करते हैं। अच्छा, अच्छा, गम से, ग्लू सूख से। जाने के बाद जो चॉक पाउडर और इमली का जो गम है उसको मिक्स करके एक कोटिंग देते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। ओके। तो पहले बॉटल में आप पूरा वो कपड़ा लगा के उसमें फिर इमली का वो पूरा जो प्रोसेस होता है वो करते हैं ना? जी जी। अच्छा। और ये तो केटल से और इसमें ये डायरेक्ट मेटल में काम होता है कि इसमें भी बेस बनाते हैं पहले? हाँ, इसमें भी कपड़ा लगाते हैं। अच्छा। और ये जो प्लेन कार्ड का बॉक्स है, ये ताल पत्ता में बना हुआ है। ये गंजीफा कार्ड का आपका वो पूरा? यस। अच्छा, बहुत बढ़िया। बन्ना, थैंक यू सो मच। और मैं थोड़ा सा 1 मिनट दिखाऊंगा कि लोगों को कि आगे के वर्कशॉप कौन से आने वाले हैं, और उसके बाद फिर कोई अगर सवाल है तो वो पूछेंगे, फिर हम खत्म करेंगे, ठीक है? हाँ, फाइनल। ये तो बहुत सुंदर, ये दिखाइए। ये एक पेंटिंग देखिए। वाह, कैसे बनाए ये? ये एक लीफ है। लीफ का जो स्केलेटन है अंदर का। दिस इज पीपल के लीफ ना, पीपल का पत्ते को स्केलेटन बनाते हैं। और कैसे किया है ये आपने? ये कांच के ऊपर लगाया है आपने? कलर कैसे निकाला आपने लीफ से? पहले व्हाइट, मतलब जहां पर काम करेंगे वहां पर वो एक लेयर व्हाइट लगा दिया, व्हाइट का कलर। इसके ऊपर वो सूख जाने के बाद काम किया फैब्रिक के कलर के साथ। यूजुअली पीपल का पत्ता जब एक्चुअली सूख जाती है तो इट विल कम आउट, इट विल कंप्लीटली लाइक ना बिकम्स अ स्केलेटन। द फाइबर इज सो थिक इन इट, it becomes a skeleton. Or actually they do the painting. Good idea. Beautiful. Outstanding. This is really good. I like everything else, of course, but this is on a different level, I guess. Make a very good workshop, Nitin ji. You must catch on this idea. ये पत्ता इतना बड़ा तो मिलता ही नहीं। ये कम से कम 12 इंची मेरे को लगता है 12 इंच पूरा लंबा है पत्ता। तो उसको लाके तो कम से कम 8-10 दिन एक पानी में डुबा के रखा है, एक थाली में। अच्छा। तो पूरा मतलब सड़ गया है, तो ब्रश से धीरे धीरे साफ किया, साफ करके सुखा के हल्का आयरन दिया, आयरन दे के फिर पेंटिंग किया। ये है, ये पत्ता है। This is incredible, amazing, बन्ना जी। बहुत अच्छा। ये भी ट्रेडिशनल है कि आपका आइडिया है लाइक नया कुछ?
ये मेरा दिमाग से निकला। ब्यूटीफुल, अमेजिंग, कभी नहीं देखा मैंने ऐसा कुछ। अमेजिंग, दिमाग लगाती रहो फिर बंदा। देखा 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 पत्थर खाली पर गुट्टे पत्थर देखा। वाह, ब्यूटीफुल। सिर्फ पत्ते से भी पेंटिंग बन सकता है, इतना खूबसूरत है। जी जी। This is the first time I have seen this intricate work. ये हाँ। बना ये क्या सेशन तो कर ही दीजिए अब नितिन जी, we will all join for this. I think yeah, we got a very new idea. Yeah. पत्ते कुरियर करवाने ये पड़ेंगे। पत्ता कहाँ से लाएंगे, ये भी एक ये कुरियर होने में पता नहीं बर्बाद हो जाएगा, इसको तो बॉक्स में रख के दो। Oh, but you can make it, you know, as a child I have done it many times. People के पत्ते को ऐसे करके ना कर सकते हैं. If they show, if you want to, maybe they can make a little video, but we can do it ourselves. It's not very difficult. अच्छा, आजकल तो पीपल के पेड़ भी पीपल शहर का में पेड़ ढूंढना पड़ेगा पहले मुझे तो। हाँ तो बहुत है. So I think metros will have a problem. Yes, yes. I am completely mesmerized. हाँ बताइए बंदा। सर आप कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तो हिंदी में बोलते हैं ना, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, वैसा। जी, इतना बढ़िया काम है कि देख के मंत्र मुग्ध हो गए हैं। मेस्मराइज हो गया, मेस्मराइज बनना। ये व्हाइट में भी बहुत अच्छा लग रहा है जगन्नाथ। व्हाइट उसका बेस ये क्या है मुर्गा बंदा? बहुत अच्छा लगता है। ये मुर्गा को दिखा दीजिए, ये वाला। रम्या, आपका मुर्गा देखना है? हाँ। और वो छोटा सा टेम्पल भी बहुत सुंदर है, ब्लैक एंड क्यूट है, ब्राउन। एक डियर भी है, बहुत क्यूट है। So sweet. ये बंद भी हो सकता है। अरे वाह, सोने का ये टाइम आ जरूर जाए। हम ले लेंगे ये वाला। हमको लगता है हम सारे के सारे वहां पर आके सबको किडनैप करेंगे, आप दोनों को। But we are actually really hoping that we can have this trip in November. We are actually planning actively for it. We're just waiting for things to calm down, and that's definitely on the things to do. That would be really amazing. Looking forward to it. Yes. Great. So, भास्कर जी और बन्ना, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, पूरा पेशेंटली समझाया भी। थैंक यू, बहुत मेरे को अच्छा लगा। भास्कर जी, हम लोग सब मिलके आपको अवार्ड दे देंगे। Thank you so much for sharing. थैंक यू, मेरे को बहुत आज बहुत खुश लगा आपका साथ थोड़ा बात किया मैंने। Thank you so much. जो क्लास भी कर रहे हैं मेरे को बहुत मतलब कभी कभी बोरिंग हो जाता है घर की बाहर की, तो आनंद मिलता है मेरे को थोड़ा। चलिए, हम लोग को भी बहुत खुश है, हमको ऐसे लगता है कि आपका घर आके हम सब ये सब देख रहे हैं। देखिए, बिना आए भी हम लोग आपने हम लोग का स्वागत कर लिया, वहां पे आएंगे भी। और जैसा आपने बोला कि वर्कशॉप से कई बार आपका बोरियत भी हटता है, तो इसी बात पे देखते हैं कि भास्कर जी क्या सिखाने वाले। तो ये 2-3 शेड्यूल्ड हैं, ये देखिए काफी एक अलग तरीके का है। फिर महिषासुर मर्दिनी है ना, और उसके बाद दिवाली के मौके पे लक्ष्मी का है। तो ये भास्कर जी के साथ भास्कर जी ने सजेस्ट किया है कि ये हम लोग थोड़ा अलग तरीके का करेंगे। और उसके बाद दशहरा के समय महिषासुर, इसका ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंस और रेलेवेंस है। फिर उसके बाद फिर दिवाली में लक्ष्मी जी। जी। सबके बिहाफ पे मैं आपको धन्यवाद दूंगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद इतना आराम से बात हो पाया, क्योंकि वर्कशॉप में तो इतना नहीं हो पाता है भास्कर जी। और ऐसा ही हम लोग बार बार करते रहेंगे। और थैंक यू अगेन एंड ऑल आवर बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।